अब हम लोग कर रहे हैं आपके साथ एमसीक्यू। कल मुझे पूरा दिन लग गया एमसीक्यू बनाने में। इन एमसीक्यू करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। करें स्टार्ट एमसीक्यू। वो रूल 3 से पहले वाला हम लोग कर चुके थे, जहां पर सेक्शन 14 मैं बताता हूं कौन सा हो चुका है। ये हो चुका है, लेकिन इसके बाद ये इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका था। 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंपोर्टर इंपोर्ट सॉल्यूशन ए फ्रॉम इंडोनेशिया, एक तरह का केमिकल है, on a condition that solution A shall not be used in manufacture of alcohol, transaction value shall be accepted as accessible value. True or false? कार्तिक ट्रू, जिनेश जी ट्रू, बाकी राजेश जी भी ट्रू, और पिंकी फॉल्स। वाई फॉल्स? कंडीशन है इंपोर्टर इंपोर्ट्स, कंडीशन ऑन सेल। यस यस, अब एक बार देखते हैं कंडीशन ऑन सेल में क्या लिखा हुआ है। ये कहता है रूल 3 में एक्सेप्ट कर लेंगे, value of imported goods under rule 3 shall be accepted provided that there are no restrictions as to the disposition or use of the goods by the buyer other than restrictions which are imposed or required by law or by public authorities. Geographical boundary do not substantially affect the value of the goods. अब मुझे बताइए ये वाला फिर से पढ़ के। Importer imports solution A from Indonesia on a condition that solution A shall not be used in manufacture of alcohol. Transaction value shall be accepted as accessible value. True or false? False हो जाएगा। Everyone agrees? Karthik does not agree. Karthik? False? Jinesh ji does not agree. सर बट वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट है। हाँ तो इम्पैक्ट है, इसीलिए तो फॉल्स है। Transaction value shall be accepted as accessible value. No, it cannot be accepted as accessible value because you have put a condition. You have put a condition. There are no restriction as to the disposition or use of the goods. Now he has put a restriction that solution A will not be used in manufacture of alcohol and solution A can be used in manufacture of alcohol. इसीलिए वो restriction लगाया, और ये restriction imposed by law नहीं है, by public authorities नहीं है, तो ये accessible value यूजर्स कंडीशन, इसीलिए फॉल्स है ना। करेक्ट है ना। इंपोर्टर इंपोर्ट सॉल्यूशन ए फ्रॉम इंडोनेशिया on a condition that solution A shall not be exported back to Indonesia, transaction value shall be accepted as accessible value. अब देखिए हमने बना तो दिया, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे इसका आंसर मैं दे दूं तो हो सकता है मैं गलत भी हूं। लिमिट द जोग्राफिकल एरिया इन विच गुड्स में बी रीसोल्ड। मैंने इसको देख के ये एग्जांपल बनाया था। मैंने बेचा आपको और कहा कि वापस इंडोनेशिया मत भेज देना, पता लगा मेरा ही कंपटीशन आपने खराब कर दिया। तो मेरे से 10 रुपया में खरीदा, वैसे तो है 80 रुपीज का, लेकिन मैंने 10 रुपया में खरीदा और वापस वहीं भेज दिया इंडोनेशिया 20 रुपए में। तो लिमिट द जोग्राफिकल एरिया इन विच गुड्स में बी रीसोल्ड, तो बताइए ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा?
मुझे तो लगता फॉल्स है, नहीं एक्सेप्ट होगा। पढ़िए एक बार। वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स अंडर रूल 3(1) shall be accepted provided that limit the geographical area in which goods may be resold. We can restrict. There are no restriction as to disposition other than restriction which limit the geographical area. So we can limit the geographical area. So as he's saying that you can sell anywhere in the world except to Indonesia. तो पॉसिबल है ट्रू कर दे? चलिए ट्रू, तो फॉल्स ट्रू, दिस इज आंसर। Importer imports product A from Australia on a condition that it shall also buy 10,000 liters of solution B. Transaction value shall be accepted as accessible value. False. ये तो याद ही हम लोग को। The sale or price is not subject to some condition or consideration for which a value cannot be determined in respect of the goods being valued. और ये इंटरप्रेटिव नोट्स में लिखा हुआ था, ये रहा। The seller establishes the price of the imported goods on a condition that the buyer will also buy other goods in specified quantities. इसके कारण ये ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो सकता। सही बात। तो ये फॉल्स। Importer imports laptop from Dubai from exporter A and exports hard disk and RAM to exporter A. यानी कि एक्सपोर्टर ए से लैपटॉप इंपोर्ट करता है और इसी को हार्ड डिस्क और रैम बेचता भी है। द प्राइस ऑफ लैपटॉप इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ हार्ड डिस्क एंड रैम। द ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड एज ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक्सेसिबल वैल्यू। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बोथ फॉल्स। ये कहां है? ये रहा। The price is established on the basis of a form of payment extraneous to the imported goods, such as where the imported goods are semi-finished goods which have been provided by the seller on a condition that he will receive the specified। नहीं, ये नहीं है। The price of imported goods is dependent upon the price of prices at which the buyer of the imported goods sells other goods to the seller of imported goods। ये वाला है B, करेक्ट जीनियस। ये आता है। Importer imports input A from New Zealand on a condition that it shall also export 10,000 units of product A. Input A is used in making of final product A. Transaction value shall not be accepted as accessible value. True or false? True. Accept नहीं होगा। ये वाला C वाला करेक्ट है। Transaction value shall not be accepted if the buyer and seller are related, even if the transaction price has been arrived as per commercial consideration. False. अगर commercial consideration से arrived है तो accept कर लेंगे। True and false. A is the answer. Examine the following statements. It is similar goods. ये वाला 1 and 2 are similar goods. इसका आपको true and false बताना है। देख के बताइए। प्रोडक्ट पेन ड्राइव मैन्युफैक्चरर एक किंगस्टन है, दूसरा स्कैनडिस्क है। कंट्री ऑफ ऑरिजिन चाइना ताइवान, कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन चाइना, स्टोरेज 32 32 इंजीनियरिंग यूएसए एंड हांगकांग।
बताइए सिमिलर है या नहीं? नहीं है सिमिलर। व्हाई इट इज नॉट सिमिलर? व्हाई इट इज नॉट सिमिलर? कंट्री ऑफ ऑरिजिन अलग है, तो इट इज नीदर सिमिलर गुड्स नॉर आइडेंटिकल गुड्स। तो इट इज सिमिलर गुड्स, फॉल्स, इट इज नॉट सिमिलर गुड्स। ये आइडेंटिकल गुड्स है। पेनड्राइव किंगस्टन, ताइवान, कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन चाइना, यूएई 32, इंडिया हांगकांग। बताइए राजेश जी करें सिमिलर है, बाकी लोग आइडेंटिकल है। देखिए आप ये मिसिंग कर रहे हैं, इंडिया से अगर इंजीनियरिंग गया है तो वो आइडेंटिकल और सिमिलर दोनों नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स है, बोथ फॉल्स। सही बात। But shall not include imported goods where engineering development this is undertaken in India। यही सिमिलर में भी है। ये क्वेश्चन 17, इंपोर्टेड गुड्स क्लॉथ ए है, आइडेंटिकल गुड्स क्लॉथ बी है, यानी कि इसका हमें वैल्यूएशन करना है। तो ये एक आइडेंटिकल गुड्स क्लॉथ बी मिल गया। मैन्युफैक्चर जरी आईएनसी, बेल आईएनसी, कंट्री ऑफ ऑरिजिन फ्रांस, कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन फ्रांस यूएसए, क्वांटिटी 10,000 मीटर्स, 50,000 मीटर्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू 600 पर मीटर, 1000 पर मीटर, क्वांटिटी डिस्काउंट यहाँ पर 50 मीटर मिल गया क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में था। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का डिफरेंस 200 और 500 दिया हुआ, करेक्ट है। Proper officer did not accept the transaction value of imported goods cloth A as the transaction was between related party and it was not proved that contract was entered as per commercial terms. Now from the above information transaction value is what? मैं पॉज कर रहा हूं, आप बताइए। अच्छा करते हैं, बेस प्राइस क्या है इसका? बेस प्राइस 650, करेक्ट। बेस प्राइस क्या 1000 है, क्वांटिटी डिस्काउंट इसको 50 मिला है, तो मुझे इस प्राइस तक पहुंचना है, इस ट्रांजैक्शन तक, तो मैं 50 माइनस करूंगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का वो 300 का है, ये प्राइस 300 से ज्यादा हुआ होगा, तो ये 300 माइनस कर दूंगा तो 650 आएगा। डी विल बी द आंसर। सही बात। एक बार आप किताब देखते हो, रूल 4, ये रूल 4 है। ये कहता है कि in applying this rule the transaction value of identical goods in a sale at the same commercial level and substantially the same quantity, जो था नहीं, where no sale is referred to in clause B, अगर ऐसा नहीं है, is found the transaction value of identical goods sold at different commercial level or in different quantities or both adjusted to take account of the difference attributable to commercial level or to quantity or both, करेक्ट है। तो ये क्वांटिटी लेवल का जो डिस्काउंट था एक्स्ट्रा वो हमने दे दिया। फिर ये लिखता है कि where the cost and charges referred to in rule 10(2) or these rules are included in the transaction value of identical goods, an adjustment shall be made if there is significant differences in such costs and charges between the goods being valued and the identical goods in question from the differences in distances and means of transport। तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रांस से, ये एक्सपोर्ट हो रहा है यूएसए से,
तो इनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ऑब्वियसली डिफरेंस है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगा था, तो उसी को, उस डिफरेंस को हमने कम कर दिया। तो अगर ये 50,000 मीटर ही यूएसए से इंपोर्ट हो रहा होता तो कितने में इंपोर्ट हो रहा होता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का रेफरेंस लेते तो 300 रुपए कम में, हाँ या ना? क्वेश्चन 18, following transaction value of identical goods were found 10,000, 15,000, 12,000. What shall be the assessable value as per rule 4 of import valuation rules 2007? बताइए। अरे कहाँ हैं आप लोग? ओके, पावर ऑफ है, सबको नजर आ रहा है ऑडियो वीडियो? लोएस्ट, करेक्ट। तो 10,000 विल बी द आंसर। किताब एक बार और दिखला देते हैं। In applying this rule, if more than one transaction value of identical goods is found, the lowest of such value shall be used to determine the value of imported goods. 7 और 8। वैल्यूएशन इज बीइंग मेड एज पर रूल 7। रूल 7 कौन सा वैल्यू है? डिडक्टिव वैल्यू है। 10,000 caps were imported from USA, declaring the value to be rupees 50 per cap. The caps are sold in India to an unrelated buyer. Following sales data has been provided by the importer: date, price, quantity, date, price, quantity. The total expenses incurred are marketing expenses 20 per cap, profit 15 per cap, GST 5 per cap. Assessable value as per rule 7 is, इसमें से मैं पॉज कर रहा हूं, आप बताइए। अच्छा, तो दो आंसर आ रहे हैं, एक 90 आ रहा है, एक 80 आ रहा है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी लेना है हमें। किस डेट को इंपोर्ट हो रहा है ये गलत हो गया, नॉट मेंशन। ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, वैल्यूएशन डिक्लेरेशन। उसके बिना आपने आंसर कैसे निकाल लिया? वैल्यूएशन डिक्लेरेशन इज 15 जुलाई। तो 90 डेज आपने कब से काउंट किया था? अच्छा, ज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर वैल्यूएशन डिक्लेरेशन है 15 जुलाई, करेक्ट है। अब इसमें मैं 90 डेज कैलकुलेट करूंगा तो ये 19 दिसंबर तो गायब ही हो जाएगा। अब सब्सटैंशियल क्वांटिटी होना चाहिए, ये भी एक रूल 7 में। तो ये जो क्वांटिटी है 10, ये सब्सटैंशियल नहीं है, इसलिए ये भी गायब हो गया। और यहां पर 10,000 कैप इंपोर्ट कर रहा है, 1,000, 3,000 और 10,000। तो हम लोग ये वाला प्राइस ले सकते हैं, बेस प्राइस जो 16 अक्टूबर का है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डिस्प्यूट नहीं होगा, 1,000 इज अ सब्सटैंशियल क्वांटिटी या 3,000 इज अ सब्सटैंशियल क्वांटिटी? रूल 7 देखते हैं, रूल 7। अरे ये बार बार क्या हो जा रहा है? कहाँ लिखा था ये सब्सटैंशियल होना चाहिए? इंटरप्रेटिव नोट्स में शायद लिखा हुआ था। Yes. For the purpose of Rule 7.2, the earliest date
shall be the date by which sale of imported goods or of identical or similar goods are made in sufficient quantity to establish the unit price. तो इसीलिए हमने कौन सा ले लिया, ये वाला ले लिया 130। इसमें 20, 15 और 5 ये तीनों माइनस कर दिया तो ये 90 आ गया। करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 20, वैल्यूएशन इज बीइंग मेड एज पर रूल 8 यानी कि कंप्यूटेड वैल्यू। A new machine was imported by sea route from a related exporter. Please mention DT. DT means हाँ कर देंगे। A new machine was imported by sea route from a related exporter. Importer requested that valuation be made as per rule 8 and has agreed to provide all related data for valuation. Cost of production $1 lakh. Transportation insurance from factory to exporter to port of export is $20,000. Assessable value as per rule 8 is. मैं पॉज कर रहा हूं, आप बताइए आंसर क्या है। So D is the right answer. 1 lakh और 20,000 जो डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये 120 तो FOB वैल्यू है, इसमें और कुछ दिया हुआ नहीं है तो प्लस 20% जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 24,000 आएगा। फिर 120 का 1.125% जोड़ देंगे तो ये 145,335 आएगा। एग्रीड? तो मुबारक हो। और ये लिखा हुआ भी है रूल 8 में, आपको दिखलाते हैं, ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑल अदर एक्सपेंस अंडर रूल 10(2). जब डिडक्टिव वैल्यू में जा रहे थे तब नहीं जोड़ना था क्योंकि वो CIF वैल्यू ही निकल रहा था, इंडिया से माइनस होकर जा रहा था। तो वी कंप्लीटेड द वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट बैगेज। हाउ वाज द MCQ? आप लोग ने बताया नहीं, MCQ कैसा लगा? मुझे पूरा दिन लगा इसको बनाने में, मैंने और कोई काम नहीं किया, सिर्फ MCQ बनाया। थैंक यू दिनेश जी। चलिए मंडे मिलते हैं आपसे। बैगेज शुरू करेंगे। यस, विल शेयर इट टुडे, विल शेयर इट। हाँ राजेश जी, आपका ऑर्डर आ गया, मैं कुरियर आज कर दूंगा। और taxbykk.com में जाके DT की क्लासेस, CS प्रोफेशनल में जाएंगे ना तो DT की क्लासेस आपको मिल जाएगी, और वो 1000 रुपीज की है, और उसमें भी डिस्काउंट है, 1000 रुपीज में भी डिस्काउंट है, तो वहां से आप ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।